Hmm. So today's topic is rigid pavement design as per the IRC code. Okay. Now till now we have done. আচ্ছা, এই স্টার্ট করার আগে কারো কিছু ডাউট আছে? If anyone has any doubt from the previous lecture? हाँ? नहीं। तो सब लोग गए हो ना अपने अपने जो भी लेक्चर है उन सब से गए हो ना, उसमें कोई डाउट नहीं है? जैसे फैक्टर अफेक्टिंग द पेमेंट डिजाइन, जैसे सायन ने कुछ डाउट पूछा है हमको, हम कोशिश कर रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है? उसके अलावा भी बहुत सारा प्रॉब्लम है सर, सो इफ यू पीपल हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क, ओके, इन इंटरैक्टिव सेशन. So as we all know, for pavement design, for pavement design of flexible pavement, what are the two important topic that we have to calculate? What are the two important parameters? First is what? For which we are designing the pavement, right? हम जिसके लिए pavement design कर रहे हैं, मतलब किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं कि एक रास्ता होगा, उस रास्ते से कोई भी अगर व्हीकल जाएगा तो वो कितना लोड ले सकता है, राइट? And in order to sustain that load, we have to give certain thickness. So here we are designing the thickness. Clear? So यहाँ पे rigid का भी वही है, यहाँ पे भी slab का thickness. A topmost layer is made up of rigid slab, concrete slab. So we have to design that slab thickness in case of rigid pavement. Okay. Whereas in case of flexible pavement, we have to determine the thickness of each layer: top surface, wearing force, base, sub base, like that. But here it is mainly dealt with the thickness of the slab, cement concrete slab. So here also one important parameter is traffic, for which we are designing. One important term is your traffic design estimates. ठीक है, उसके लिए जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टर्म ये वाला है, इसका डेरिवेशन आई थिंक, सॉरी, इसका फॉर्मूला आई थिंक यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट इन फ्लेक्सिबल पेमेंट. वहाँ पे क्या था? कैपिटल एन था, राइट? कैपिटल एन इक्वल्स टू क्या था? 360 to a into 1 plus r to the power n minus 1 into there are some other factors like lane distribution factor, vehicle damage factor, everything, right? वहाँ पे दो और फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, लेकिन फॉर रिजिड पेमेंट वी आर फर्स्ट डिटरमाइनिंग दिस वन ओनली. लेटर ऑन वी विल मल्टीप्लाई दोज फैक्टर. ठीक है, यहाँ पे ए क्या है? ए इज द प्रेजेंट ट्रैफिक. दैट मीन्स आज से तुम्हारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, आज का ट्रैफिक नहीं. जब हम लोग कोई भी स्टडी कर रहे हैं, मतलब सर्वे कर रहे हैं, तब का ट्रैफिक है, नॉट दैट ट्रैफिक. ए ट्रैफिक इज कि जब तुम्हारा रास्ता इज इन ऑपरेशनल कंडीशन, मतलब अब उसमें गाड़ी जाना पास करेंगे, गाड़ी जा सकता है उसके ऊपर से, तो एट दैट टाइम व्हाट इज द ट्रैफिक? दैट इज योर प्रेजेंट ट्रैफिक इन टर्म्स ऑफ CVPD. ओके, and as we all know, this is design life. For rigid pavement, it lies between 20 to 30 years, ठीक है, in design life. Whereas R is your annual traffic growth. Again, we have to assume it as 7.5%. ठीक है, and C is nothing but the cumulative repetition of load. ম্যাম ওই এই ফর্মুলাটা তো আলাদা ছিল একটা, ওই ইয়ে পেমেন্টের জন্য, ফ্লেক্সিবল পেমেন্টের জন্য এন ইকুয়াল টু টার্ম একটা ছিল তো। হ্যাঁ, ওখানে n ছিল, ঠিক আছে, এখানে আমরা C করছি. ওকে, अब वहाँ पे क्या था? ये सब तो था ही, इनटू क्या था? यहाँ पे इनटू था VDF, व्हीकल डैमेज फैक्टर, एंड इनटू लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. ठीक है, अब यहाँ पे ये सब नहीं होकर क्या हो जाएगा? दिस इज योर लोड फैक्टर and this will be your lane distribution factor. For here they are considering it as to be ये वाला देखो 25. ठीक है, that value will be converted to 25%. lateral placement of the wheel, मतलब अगर तुम्हारा व्हीकल जा रहा है तो हम लोग बोल रहे वी हैव टू कंसिडर फॉर द एज लोडिंग. as we all know, there are three stresses: stress due to loading at corner, at center, at interior and at the edge. ओके, तो एज में मैक्सिमम होता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग कंसिडर करते हैं एज के लिए. अब मैक्स जितना भी तुम्हारा सपोज 100, अब सपोज तुम्हारा 100 व्हीकल्स उस रास्ते से जा रहा है, तो 25 नंबर ऑफ व्हीकल्स इज एज्यूम टू बी पासिंग थ्रू द एज ऑफ द पेवमेंट. ये एज्यूम है,
ठीक है। IRC 58 में ये एजम्पशन है कि अगर 100 व्हीकल्स उस रास्ते से जाएगा तो उसका 25% मतलब 25 व्हीकल्स एज से होकर जाएगा ही। Again we know that the load at the edge, stress developed due to loading at the edge will be always maximum. इसलिए हमको ये वाला कंसीडर कर देना है कि इसको ये जा रहा है पूरा व्हीकल जा रहा है पूरा रास्ते के ऊपर से इतना नंबर ऑफ व्हीकल्स, दिस इज 100 व्हीकल्स, उसमें से 25 ही हमको कंसीडर करना है फॉर डिजाइन पर्पस, क्योंकि 25 तुम्हारा व्हीकल जाता है एज से। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। अब उसका भी कंडीशन देखो क्या बोला है, फॉर 2-वे 2 लेन रोड, मतलब ऐसा 2 लेन है और दोनों तरफ से आ रहा है, तब हम लोग बोले एक एज का 25%, मतलब एक एज का इस तरफ से 25% जाता है, एक एज का इस तरफ से 25% जाता है। ठीक है। अब 4 আচ্ছা ম্যাম, लेन, এখানে হ্যাঁ এখানে যদি মানে আমার 2 ওয়ে লেন আছে, হুম তো হুম আমি কোনো একটা সিঙ্গেল সাইডের মানে সিঙ্গেল সাইড লেনেরই 25% ধরবো নাকি বোথ লেনের মিলিয়ে 25% ধরবো? না না সিঙ্গেল लेन। ठीक আচ্ছা, है। সিঙ্গেল লেন, ওকে। और एक है तुम्हारा बोला कि अगर मल्टी लेन होगा तो बोला कि प्रीडोमिनेंट कोई भी लेन पकड़ो, सॉरी এখানে here it will be both lane, okay, here will be both lane, whereas 25% of both lane होता है। हाँ both lane, whereas in case of your multi lanes, ठीक है, मल्टी लेन्स अगर होगा तो वहां पे देखना है कि कौन से लेन में तुम्हारा ज्यादा मैक्सिमम लोड ट्रैवल होता है प्रीडोमिनेंट डायरेक्शन में जो, ठीक है, तो कौन से लेन में ज्यादा ट्रैफिक मूव होता है, एक होगा इस तरफ एक होगा वो इस तरफ है, ठीक है, तो कौन सा लेन में ज्यादा तुम्हारा वॉल्यूम ट्रैफिक वॉल्यूम है उसका ही हम 25% कंसीडर करेंगे। ठीक है। क्लियर ना? डाउट अच्छे? यस मैम। हम्म हाँ मैम, क्लियर। अच्छा। Now the 25 because the 25% of the traffic moves from the edge of the pavement. Okay. तो हमको डिजाइन ट्रैफिक कितना लेना है, ये जितना भी आएगा उसका 25% में कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होगा। दूसरा अब क्या है कि क्रिटिकल स्ट्रेस कंडीशन कहाँ पे होता है, आई ऑलरेडी सेड एज में तुम्हारा मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू लोडिंग जो भी होता है वो मैक्सिमम होता है एज में। ठीक है, क्यों? एनी आइडिया? কি বললেন আর একবার? I said that the maximum stress which is developed due to loading, there are 3 critical points. One is your edge, one is corner, and one is interior. But we have seen that at the edge, maximum stress are developed. Why? This is your rigid pavement. First consider that this is your rigid pavement. Okay. Suppose this is the one lane and this another lane. तो और यहाँ पे दूसरा तुम्हारा स्लैब है ऐसा ऐसा, ठीक है। अगर if the vehicle, if the, see there are joints, what kind of joint? Transverse and longitudinal joint. Vehicles are moving in this direction. So if this is your wheel, okay, if this wheel travels from the transverse joint, if it comes over the transverse joint or if it comes over the edge, which one give will, so which condition will give you the maximum stress? एक होगा कि तुम्हारा इजी जेटा जाते हैं ट्रांसवर्स, सेटा तो हम बोले वो तो हम बोल चुके हैं कि एज में जब जाएगा तब मैक्सिमम होगा, लेकिन क्यों? अच्छा कार म्यूट करो ना वो। सुदीप्ता हाँ मैम। ये वाला लोड अगर एज मतलब ये वाला ट्रांसवर्स जॉइंट में रहेगा और ये वाला एज आइदर एज में रहेगा, तो कौन सा तुम्हारा ज्यादा लोड दे सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप कर सकता है दोनों में से? आई सेड एज वाला ज्यादा करेगा, लेकिन क्यों? बिकॉज एज वी ऑल नो एट द ट्रांसवर्स जॉइंट वी आर प्रोवाइडिंग व्हाट, डबल बार, पता है ना, हम ट्रांसवर्स जॉइंट में डबल बार देते हैं, डबल बार प्रोवाइड करता है। तो क्या हो जाता है उसकी वजह से, इफ द व्हीकल कम्स हियर, if the वो ट्रांसफर हो जाता है exactly load will be transferred to the हाँ, लोड another ट्रांसफर हो slab। जाচ্ছে। हाँ मतलब कि सिर्फ यही हाँ, स्लैब और नहीं लेगा लोड, दूसरा स्लैब भी ले लेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैसा कोई कंडीशन नहीं है, तो ये पूरा ये इसी को लेना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होता है।
सो दिस इज द कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा क्या कंसिडरेशन है, बहुत सा, अच्छा ये वाला एमसीक्यूज के लिए हो सकता है, ठीक है। दिस वन, दिस पोर्शन, व्हाट इज दिस, लीगल एक्सेल लोड, लीगल एक्सेल लोड। आई सेड देयर इज व्हाट, स्टैंडर्ड एक्सेल लोड। इतना दिन तो हम लोग स्टैंडर्ड एक्सेल पढ़ रहे थे, लेकिन लीगल एक्सेल क्या है, एनी आइडिया? लीगल एक्सेल और इन दोनों का बीच में रिलेशन क्या है, विच वन विल बी ग्रेटर? मेरे को लेते तो यू नो 8.96 8.96 सिंगल एक्सेल के लिए स्टैंडर्ड ना सिंगल, सॉरी কি বলছেন আরেকবার বলুন। सपोज दिस इज योर सिंगल एक्सेल, ठीक है, सिंगल एक्सेल। হুম, इसके लिए बोला है कि तुम्हारा स्टैंडर्ड एक्सेल वैल्यू इज हाउ मच, 8.16 टन, ठीक है। वेयर एज लीगल एक्सेल इज हाउ मच, 10.2 टन्स। सो हाँ लीगल एक्सेल इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड एक्सेल, लेकिन क्यों? लीगल एक्सेल है एक्चुअली, স্ট্যান্ডার্ড এক্সেল है कि हम लोग লিগাল এক্সেল তো ওই লোড গুলো নিয়ে গাড়ি, এটাও তো মানে লোড, যেসব এটাও জিনিস লোড, ফিনিস আছে, দিস আরে ইজ যেসব অলসো জিনিস লোড। ফিনিস থাকে। জিনিস ফিনিস নিয়েও এটাও সেটা, এটাও সেটা, বাট डिफरेंस इज दैट আমরা वी आर यूजिंग दिस फॉर आवर डिजाइन पर्पस, दिस ये वाला यूज करके हम डिजाइन है, ठीक है। अब इसके बावजूद हम लोग बोल दिया कि ए वन सिंगल एक्सल व्हीकल जितना भी वो इतना लोड ही कैरी करे, ठीक है, नहीं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि तुम्हारा लीगली वो लोग कभी कभी वो उतना, उससे भी ज्यादा लोड कैरी करके चला जाता है व्हीकल्स, ठीक है, उससे भी ज्यादा ये व्हीकल्स कैरी कर लेता है लोड, मतलब 8.16 ही रखेगा ऐसा नहीं होता है। लीगल एक्सेल लोड रखते फिर भी, लीगल हाँ, फिर भी वी आर अलाउइंग दोज व्हीकल इन द रोडवे, ठीक है। तो कितना दूर तक होने से हम उसको अलाउ करेंगे, दैट इज योर लीगल एक्सेल, मतलब लीगली कितना ज्यादा, मतलब स्टैंडर्ड से और कितना ज्यादा हम लोग अलाउ कर सकते हैं। तो ये अगर 8.16 है तो ये मैक्स, उससे ज्यादा ये कितना ले सकता है, मैक्स टू मैक्स 10.2 तक ही हम अलाउ करेंगे, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लीगली अलाउड, लीगल एक्सेल। तो उससे ज्यादा हो जाएगा तो चार्जेस लगेगा, ठीक है, या वो illegal, not allowable. Similarly for tandem axle, what was the standard axle load? tandem axle मतलब दो axle के लिए तुम्हारा क्या था वैल्यू, 14 14.96, ठीक है, 14 14.96। अब इसका आ रहा है कितना, देखो 19.6, वो बढ़कर 19.6 तक अलाउ हो सकता है, सॉरी 19 टन, ठीक है। ऐसा ही ट्राइडम वैसा, ठीक है। अब ये वाला भी तुम लोग को थोड़ा याद रखना है, टायर प्रेशर फॉर डिजाइन पर्पज है तुम्हारा, रेंज शुड बी बिटवीन 0.7 to 1 MPa, और ऑन एज्यूम हम लोग कर सकते हैं 0.8 MPa तक। ऑल दीज आर ओनली फॉर योर डिजाइन MCQ पर्पज। नाउ कम्स नेक्स्ट स्टेप, देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे, हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई टू फैक्टर्स, PDF इन एक्स, तुम्हारा क्या था, IRC 37 में जो था तुम्हारा फ्लेक्सिबल पेमेंट में VDF था, और एक था तुम्हारा लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। अब यहाँ पे तो वो सब टर्म नहीं है, तो ये वाला लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर रहे हैं, दिस टेकन इट एज 25%, उस 0.25 कर दिया। अब VDF के बदले क्या आ रहा है यहाँ पे डैमेज के बदले आ रहा है तुम्हारा लोड सेफ्टी फैक्टर, ठीक है, रिजिड पेमेंट में लोड सेफ्टी फैक्टर आ रहा है, which is considered to be 1.2 for national highway, express highway और important road, means जहाँ पे ट्रक्स, हेवी ट्रक्स जहाँ से पास होता है उस रास्ते से, तब हम लोग 1.2, ठीक है। फॉर लेस इम्पॉर्टेंट, मतलब और भी रोड्स होगा, लेकिन नॉट लाइक द रेसिडेंशियल या विलेज रोड, वैसा नहीं, उसमें ट्रक्स अलाउ है, लेकिन लो वेट ट्रक्स, तो उसका कितना है 1. और जो रेसिडेंशियल पर्पज जो भी वैसा रोड है, विलेज रोड, उसमें तुम्हारा SF इज 1, ठीक है। ये एज्यूम करना है हमको ड्यूरिंग आवर डिजाइन प्रोसीजर। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, मेन यही है, ठीक है। फर्स्ट हमको क्या करना है, हमको स्ट्रेस, एज स्ट्रेस, ये वाला जो बोले थे कि एज में मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये वाला जो क्रिटिकल कंडीशन, मैक्सिमम विल टेक प्लेस एट द एज, तो उसको हम लोग जो भी फॉर्मूलाज था हम लोग का वो यूज नहीं कर रहे। वेस्टरगार्ड का फॉर्मूला, ये IRC मेथड और वेस्टरगार्ड का क्या है बोलो तो डिफरेंस, वी आर यूजिंग सम ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम द वेस्टरगार्ड इक्वेशन। वेस्टरगार्ड का जो भी स्ट्रेस एनालिसिस का इक्वेशंस है, उसमें से कुछ ही हम यहाँ पे यूज करते हैं, और बाकी वी विल डिराइव फ्रॉम द चार्ट्स, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल दिखा देते तुम लोग को,
मैम हाँ पीडीएफ को थोड़ा जूम कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ करेंगे। देखो अभी और हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है ये। हाँ मैम ये हाँ हाँ ये दिखाई सब दे रहा ये ऐसा घुमा हुआ है, इसको ऐसे देखना पड़ेगा। दीज आर द चार्ट्स, ठीक है। यहीं से हमको एज स्ट्रेस निकलेगा। सबके पास अपना अलग अलग वो है, तो खुद का अलग से मोबाइल या किसी में निकाल के देख सकते हो। पेज तुम्हारा 31 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 31 से शायद 51 तक है ये चार्ट्स IRC 58 में। सो वी हैव टू calculate that age stress developed due to age loading from these charts, ठीक है। ये जो भी चार्ट्स है ओनली फॉर एज स्ट्रेस, ठीक है। उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, देखो यहाँ पे देखो। इसको थोड़ा उल्टा कर देने से होगा, यहाँ पे नहीं है ना रोटेट। ये जो है देखो, ऑल दीज आर के वैल्यूज। हमको क्या चाहिए, के वैल्यू चाहिए, ठीक है। सबरेट का रिएक्शन वैल्यू चाहिए, और क्या क्या चाहिए, स्लैब थिकनेस, कि कितना स्लैब हम लेंगे, वो भी एज्यूम करना है। फर्स्ट स्टेप हमको एज्यूम करना है स्लैब, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट एज्यूम कर दिया, सपोज 30 सेंटीमीटर का स्लैब लिया है, के का वैल्यू इट इज सपोज प्रोवाइडेड, ठीक है। सपोज दे दिया है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका तुम 30 को जाके तुम्हारा सपोज ये वाला हम यूज करेंगे, टॉप वाला। ये जो डिफरेंट ग्राफ्स है, কোন গ্রাফটা লাগবে কি করে বুঝবো? हैं अब उसके लिए भी ওটাই बोल रहे हैं। देखो उसके लिए भी है कि ये वाला देखना है, फर्स्ट है ये वाला देखना हमको, एक्सेल लोड, ठीक है। वेदर इट इज टैंडम या सिंगल एक्सेल, पहले तो ये देखना ये सब टैंडम का है, ठीक है। और ऊपर अगर जाओगे तो देखना तुम्हारा टैंडम वाला सब, ये देखो सिंगल एक्सेल चला आया, सी यार सिंगल एक्सेल, ठीक है। सिंगल एक्सेल अगर इतना टर्न है तो ये वाला चार्ट, सिंगल एक्सेल अगर 12 टर्न, टैंडम एक्सेल अगर 12 टर्न है तो ये वाला चार्ट, ठीक है। उस हिसाब से ये वाला तो एज्यूम कर चुके हैं हम थिकनेस, उसका करस्पॉन्डिंग के वैल्यू, सपोज के है तुम्हारा 6, तो कौन सा होगा, टॉप मोस्ट वाला ग्राफ। उसको जाके एकदम यहाँ पे लेकर जाओ, तो वहां से तुम्हारा आएगा स्ट्रेस, फॉर दैट एज स्ट्रेस निकल आएगा फॉर दैट कंडीशन, ठीक है। मैम वाई एक्सिस पे क्या है मैम? वाई एक्सिस में है तुम्हारा ये जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेस, ये है तुम्हारा एज का स्ट्रेस। हम एज स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग एट एज इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब आते उसमें तुम्हारा इसमें देखो ये सा चार्ट है। स्लैब थिकनेस यहाँ पे है, यहाँ पे कोई भी एक लोड देगा, एक्सेल लोड तुम्हारा टैंडम है ना, सिंगल एक्सेल है, हो जाएगा। और ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेस एट एज, ये सब है के का वैल्यू। অ্যাক্সেল লোড আর ট্যান্ডাম লোডটা কি অঙ্কে বলে দেবে? हाँ अंक तो बोले देवे, ठीक है। सो व्हाट डाटा वी हैव टू नो, फर्स्ट वी हैव टू नो द वैल्यू ऑफ एक्सेल लोड, कितना एक्सेल है, टैंडम है कि सिंगल है, ये फिर स्लैब थिकनेस, फिर के वैल्यू, तीनों चाहिए। उस हिसाब से एज स्ट्रेस फ्रॉम द चार्ट वी कैन कैलकुलेट। पेज नंबर यहाँ पे दिया 33 से 52 तक है, ठीक है। अब तुम्हारा ये वाला, अच्छा यहाँ पे तुम दिए थे ऐसा ही ये वाला है, ठीक है। स्लैब थिकनेस, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस, के का वैल्यू, और सिंगल है ना, सिंगल एक्सेल 12 टन ये है, तो अगर सिंगल एक्सेल 14 है तो ये कुछ कुछ वैल्यू आ सकता है कि दोनों के बीच में। सपोज सिंगल एक्सेल लोड 13 टन, ठीक है। तो क्या करेंगे हम अब 13 टन के लिए, तो कोई भी 12 टन का उस पर्टिकुलर डेप्थ के लिए, पर्टिकुलर के वैल्यू के लिए ये वाला निकालो, फिर सेम 14 का भी वैसे निकालो, पर्टिकुलर डेप्थ और पर्टिकुलर के वैल्यू के लिए निकालो, इंटरपोलेट कर दो 13 का। क्लियर? ओके अब तुम्हारा बीच दूसरा, में अगर रहेगा यस तब मैम हाँ बीच में अगर रहेगा तो ठीक है। अब आते हैं तुम लोग का, ये तो हो गया स्ट्रेस का कैलकुलेशन, ठीक है। अब आते हैं कि ये नंबर ऑफ, कितना रिपीटेशन ऑफ लोड ये अलाउ कर सकता है, वो एक पेवमेंट कितना रिपीटेशन ऑफ लोड अलाउ करता है। दिस इज गिवन बाय योर स्ट्रेस रेशियो, ठीक है। स्ट्रेस रेशियो से पता चलता है। स्ट्रेस रेशियो का डेफिनेशन क्या है, देखो, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस ड्यू टू लोड, मतलब ड्यू टू लोड की वजह से, एक्सटर्नल लोड की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा पेवमेंट में, डिवाइडेड बाय फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, मतलब उसका खुद का स्ट्रेंथ, ठीक है। जो बाहर से आया, कितना लोड की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हुआ, और ये है खुद का स्ट्रेंथ कि वो कितना कैपेसिटी है उसका, ठीक है। दिस विल बी गिवन,
अब ये वाला आएगा कहाँ से, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। फ्लेक्सुरल स्ट्रेस तुम्हारा ये सब चार्ट से चार्ट से आएगा, ठीक है। करके यहाँ पे बिठा दो, बिठा के तुम्हारा स्ट्रेस रेशियो आएगा। अब बोलो, अगर स्ट्रेस रेशियो वैल्यू बहुत कम आया, मतलब तब क्या होगा, रिपीटेशन ऑफ लोड तुम कम दे सकते हो ना कि बहुत ज़्यादा दे सकते हो। स्ट्रेस रेशियो अगर कम आया, बहुत कम आया, কেসটা কম আছে তো আমি লোডটা বেশি দিতে পারি। কেস রেশিও তো কম আছে। सेमिस्टर का पेपर, वैसे फिर से एग्जांपल दे रहे हैं, सेमिस्टर का पेपर और ये तुम्हारा प्रिपरेशन, ठीक है। सेमिस्टर का प्रेशर मतलब ये स्ट्रेस रेशियो बहुत कम है, मतलब क्या है, सेमिस्टर का प्रेशर बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो क्या है, तुम ऐसा एग्जाम बहुत बार दे सकते हो, इन्फिनिटी टाइम्स तुम पास हो जाओगे सब एग्जाम में, राइट। ऐसा ही टाइप का पेपर आता ही रहेगा तो तुम सब में ही पास हो जाओगे, मतलब लोड जैसा भी आए तुम लेते रहोगे उसको, राइट। ऐसा सिचुएशन में तो यही देखो, अगर स्ट्रेस रेशियो का रेंज बोल दिया कितना, 0.45 से कम, दोनों के बीच में या उससे ज़्यादा, जनरली कम ही होना चाहिए। अब देख एक रेंज दे दिया कि इतना से अगर कम हो गया, 0.45 से अगर कम हो गया, तो हम उसमें उस रास्ते से इन्फिनिटी टाइम्स अनलिमिटेड बार गाड़ी जा सकता है ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रेस। जो भी लोड की वजह, जितना भी लोड की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है वो अनलिमिटेड टाइम्स जा सकता है उसकी वजह से, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, yes बाकी यस दे। मैम। अगर अगर ये वाला वैल्यू इन दोनों के बीच में आया, मतलब ये थोड़ा वैल्यू, मतलब पेपर थोड़ा टफ आ गया पिछले वाले से थोड़ा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये अब बोलेगा नहीं ये हम एक दो बार ही दे सकते हैं ये वाला पेपर, ठीक है। तो यही है, इसका कुछ वैल्यू आएगा एक, ठीक है। और वैसे ही बोला है अगर एस ए का वैल्यू 0.55 से ज़्यादा है तो इस हिसाब से हमको एन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब तुम्हारा एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये एन इज व्हाट, हाउ मच रिपीटेशन ऑफ लोड कैन बी पास थ्रू दैट पेमेंट, ठीक है। ম্যাম 0.5 to 0.55 থাকলে ফার্স্ট ফর্মুলাটা ना 0.45 से अगर कम है तो एन है, एन इक्वल टू इन्फिनिटी। इन दोनों के अगर बीच में 0.45 से लेकर 5 तो ये वाला फॉर्मूला से एन निकालो, ठीक है। अगर एस आर इससे ज़्यादा है, 0.55 से ज़्यादा है तो ये वाला फॉर्म लॉग है, इसको लॉग इनवर्स करके ये वाला वैल्यू निकालना है। इट इज़ गिवन इन पेज 14, देख सकते हो, पेज 14 में दिया है ये वाला इक्वेशन, ठीक है। এবং কোড অ্যালাউ হবে তো, তাহলে তো ফর্মুলাগুলো তো মুখস্থ করতে হবে না। हाँ देखो ये है, ठीक है। ये वाला देखो, ये वाला जो था ये, ठीक है। अगर बहुत सारे प्रॉब्लम में तुमको ये नहीं देगा तो भी अगर बोलेगा कोड अलाउ है तो इतना कैलकुलेट कौन करेगा, इससे अच्छा तुम क्या करोगे, ये वाला चार्ट पेज नंबर 15 में चले जाना, ये है, ठीक है। स्ट्रेस रेशियो तो निकालना ही पड़ेगा, स्ट्रेस रेशियो তাহলে তো কেউ ক্যালকুলেটই করবে না। এদের মাঝখানে তো থাকতে পারে স্ট্রেস রেশিও, তখন তো ক্যালকুলেট করতে হবে, ঠিক আছে। तो তো প্রথম 0.45 ले দেওয়া আছে लिए, আর কি। हाँ दे दिया है, ठीक है, यहाँ से भी आ सकता है, ओके। अब आते हैं तो ये तक हो गया, पहले स्ट्रेस निकालो फिर स्ट्रेस रेशियो निकालो, फिर स्ट्रेस रेशियो से कॉरेस्पॉन्डिंग एन निकालो। एन इज व्हाट, एन क्या है कि सॉरी कितना रिपीटेशन ऑफ लोड जा सकता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं फैटिग लाइफ। फैटिग लाइफ मतलब है कि तुम्हारे में बार बार एक ही टाइप का अगर लोड आता रहेगा तो उसको उसकी वजह से क्या নাম্বার অফ स्ट्रेस होता है, রিপিটেশন। हाँ दैट इज फैटिग डेवलप हो जाता है। तो उसका फैटिग लाइफ कितना है, मतलब पेमेंट कितना लोड ले सकता है टोटल, नंबर ऑफ रिपीटेशन, उसका लाइफ कितना है, उसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। विदाउट एनी फेलियर कितना तक दूर तक वो ले सकता है फैटिग लाइफ। है कि ये वाला चार्ट जो बोले थे 15 नंबर, इससे भी आ जाता है। এটা কোথায় থেকে এলো এ বাবা, একটা স্টেটাস चले গেছে। अच्छा इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तुमको थर्मल स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। एक पीडीएफ मिस हो गया यहाँ पे, थर्मल स्ट्रेस, टेम्परेचर स्ट्रेस, ये जो है, ठीक है, ये वाला पेज 19 में है। एज स्ट्रेस निकल आया और एक टेम्परेचर स्ट्रेस भी निकालना है। देखो टेम्परेचर स्ट्रेस इज व्हाट, ई, ये वाला फॉर्मूला तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, राइट, वेस्टरगार्ड एनालिसिस में। ये जो वेस्टरगार्ड एनालिसिस यूजिंग ब्रैडबरीज कोफिशिएंट, ब्रैडबरीज कोफिशिएंट इज गिवन बाय सी, जो कि ये है सी, ठीक है।
So alpha T into C. Alpha is coefficient of thermal expansion per डिग्री सेंटीग्रेड में. ये T क्या है? दिस इज द, अगर ये वाला स्लैब है, ठीक है, तो टॉप में अगर ये टेम्परेचर टॉप स्लैब का ये है और बॉटम लेयर का टेम्परेचर का 2 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन T1 एंड T2 इज योर T वैल्यू. ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, आइदर ये वार्प डाउन हो जाएगा या वार्प अप हो जाएगा. ठीक है, ऐसा हो जाएगा. टेम्परेचर डिफरेंस, टॉप और बॉटम के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वार्प डाउन या वार्प अप केस हो जाता है. इसे भी एक स्ट्रेस डेवलप होता है इसका इंटरनली. अब देखो ये वाला कंडीशन में ऊपर में क्या हो रहा है, टेंडेंसी हो रहा है टेंशन होने का, राइट. ऊपर में टेंडेंसी है कि टेंशन होने का और नीचे टेंडेंसी है कि कंप्रेशन होने के लिए, राइट. लेकिन ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, इसका जो खुद का वेट है, इट विल ट्राई टू रेजिस्ट बाय रिस्ट्रेन, उसको खुद अपने जगह में आने का कोशिश करेगा, रिस्ट्रेन करेगा. तो क्या करेगा, इसका अगेंस्ट में स्ट्रेस जनरेट होगा, विच विल नाउ टी, यहाँ पे नीचे की तरफ टी हो जाएगा और ऊपर में सी हो जाएगा उल्टा. ठीक है, तो ये वाला याद रखना कि तुम्हारा ऐसा अगर कंडीशन होगा तो टॉप में तुम्हारा हो जाएगा कंप्रेशन और बॉटम में टेंशन हो जाएगा, अपोजिट टू द एक्सटर्नल जो भी कंडीशन हो रहा है. ड्यू टू सेल्फ ड्यू टू वेट, वेट के कारण ये इंटर हाँ सेल्फ वेट की वजह से. ठीक है, अभी ऐसे ही अगर यहाँ पे सी है, कंप्रेशन है बाहर, यहाँ पे टेंशन है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन सी हो जाएगा और यहाँ पे टेंशन हो जाएगा. ठीक है, सो इसका भी स्ट्रेस आ जाता है, तो इसकी वजह से भी अंदर में स्ट्रेस आ रहा है, तो उसका ये वाला टैकल करेगा, ये वाला फॉर्मूला. ई का वैल्यू अगर नहीं दिया रहेगा तो कितना लेना है, 2 × 10⁵, ऐसा 3 × 10⁵, अल्फा है 10 × 10⁻⁶. डिफरेंस दिया रहेगा. टेम्परेचर डिफरेंस ही तुम्हारा क्या होता है कि बहुत सारा जगह के ऊपर डिफरेंस वेरी करता है. वेस्ट बंगाल में कुछ होगा, मतलब ये जो टॉप T1 और T2, मतलब टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस का जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है, इट डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशन, ऑन विच लोकेलिटी, कौन सा स्टेट का है, उसके ऊपर डिफरेंट ये वेरी करता है. तो बहुत सारा प्रॉब्लम में देखना, स्टेट का दे देगा फॉर सर्टेन थिकनेस, मतलब एच का वैल्यू के लिए टी का वैल्यू दे देगा. ठीक है, कि एच का वैल्यू अगर ये है तो टी का ये है, तो वहाँ से भी हमको ये मिल जाता है टी का. ठीक है, और सी के लिए हमको चाहिए, अब क्या, सी के लिए हमको चाहिए ये वाला चार्ट, दिस वन, कोफिशिएंट ऑफ तुम्हारा ब्रैडबरीज कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं, सी का वैल्यू. इसके लिए हमको चाहिए कैपिटल एल बाई स्मॉल एल. अगर लेंथ ऑफ द स्लैब, उसके लिए हमको चाहिए लेंथ स्लैब. अगर लेंथ है तुम्हारा एल, अगर बी है तुम्हारा, ब्रेथ है तुम्हारा अगर बी. ठीक है, तो एल बाई स्मॉल एल, यहाँ से कोई भी वैल्यू ले सकते हो जो कैलकुलेट कर दिया, उसका करस्पॉन्डिंग सी निकल आएगा. ठीक है, क्लियर. और बी बाई एल अगर करेंगे तो सेम यही चार्ट ले लेंगे, लेकिन बी बाई एल का एक वैल्यू कुछ भी आएगा, उसका करस्पॉन्डिंग सी का वैल्यू हम ले लेंगे. और दोनों में से जो मैक्सिमम, ছোট এটা কোনটা? ছোট এল হচ্ছে রেডিয়াস অফ রিলেটিভ স্টিফনেস. বুঝতে পারছো, ঠিক ঠিক ঠিক. এই যে এটা, সরি, এই যে এটা, দিস ইজ দ্য স্মল এল, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस. ठीक है, ई एच क्यूब 1 - म्यू स्क्वायर. म्यू अगर नहीं दिया रहेगा तो 0.15, के का वैल्यू इट विल बी प्रोवाइडेड, एच वी हैव टू एज्यूम, ई वी कैन एज्यूम. ठीक है, तो ये एल निकल आएगा. दोनों में से देखो एक ही इक्वेशन है, लेकिन दोनों का एक ही इक्वेशन है, बी बाई एल हो या एल बाई एल हो, दो वैल्यू आएगा सी का. बी बाई एल के लिए सपोज सी एल है, सॉरी एल बाई एल के लिए सपोज सी एक्स है, बी बाई एल के लिए सी वाई है. दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ पे बिठा दो, सी एक्स या सी वाई. सो ये वाला तुम्हारा थर्मल स्ट्रेस आ जाएगा, वार्पिंग स्ट्रेस जिसको बोलते हैं. ठीक है, কি বললেন না, আগে বলুন, বুঝলাম না. वार्पिंग स्ट्रेस, डब्ल्यू ए না आर. ওই যে কোন ভ্যালুটা পছন্দ কি বললেন যেটা? देखो ये जो सी का वैल्यू है, ठीक है, एक आएगा क्या, लेंथ आएगा, एक ब्रेथ आएगा. एल इज कॉमन, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस इज कॉमन. सो एल, कैपिटल एल में भी डिफरेंट, लेंथ में भी एंड ब्रेथ में भी डिफरेंट, राइट. इट में भी रेक्टेंगुलर. ठीक है, तो एल बाई एल का एक वैल्यू आएगा, बी बाई एल का एक वैल्यू आएगा. तो एल बाई एल का कोई भी वैल्यू के लिए, सपोज एल बाई एल का वैल्यू आया तुम्हारा 3, सॉरी सपोज तुम्हारा एल बाई एल का वैल्यू आया 3 के लिए 0.175. अब देख रहा है कि बी का वैल्यू तुम्हारा आया सपोज 1, सॉरी सपोज 2 आया, तो 2 के लिए कौन सा लेंगे, 0.04. ठीक है, सो सी एक्स है तुम्हारा, कॉरेस्पॉन्डिंग एल बाई एल का वैल्यू कितना है, दैट इज 0.175. और सी वाई है तुम्हारा कितना, बी बाई एल 2 था, 2 का आ रहा है तुम्हारा
0.04। अब देखो दोनों में से कौन सा मैक्स ये वाला है, उसको हम अब यहाँ पे बिठा देंगे, उसी को यूज करेंगे। क्लियर वैल्यू क्या बता रही हाँ, जो भी मैक्सिमम है मैम उसको सी use- एक्स सी वाई कैसे निकाले पता नहीं चला। कैसे निकाले? देखो यस बी पेपर अगर एक लेंथ तुमको दिया रहेगा स्लैब का, राइट, यस हम लोग एक्सपांशन जॉइंट या कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट से लेंथ का, स्पेसिंग का मतलब क्या, लेंथ ऑफ द स्लैब ही है, एल का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। सपोज 3.5 मीटर, तो बी इज इक्वल टू 3.5 मीटर। लेंथ तुम्हारा सपोज आया है ये वाला 4.5 मीटर, ये तुम्हारा सपोज 4.5 मीटर एंड दिस इज योर 3.5 मीटर, ठीक है बी। और ए वैल्यू सपोज कुछ कैलकुलेट करके आया है तुम्हारा 80 सेंटीमीटर, सपोज वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके, ये सब मीटर में है, दिस इज इन सेंटीमीटर, ठीक है, ये है मीटर एंड दिस इज ऑल्सो योर मीटर, ठीक है। तो एल बाई एल निकालो, एक वैल्यू आएगा, बी बाई एल, दोनों का यूनिट मस्ट बी सेम, लेकिन 4 मतलब कितना होगा ये 450 बाई 80 होगा और 350 बाई 80 होना चाहिए, राइट। पॉइंट हाँ 8 हाँ, या 0.8 करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो करने से क्या हो रहा है तुम्हारा, एक वैल्यू आएगा, सपोज एल बाई एल का वैल्यू तुम्हारा कैलकुलेट करके आ रहा है 3 निकाया, ठीक है, एल बाई एल, यहाँ से हमको 3 ये वाला है, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये क्या है, सी एक्स, एल से रिलेटेड हम बोल रहे हैं सी एक्स, उसका आया सपोज तुम्हारा कितना बोले हम, 0.175 हाँ 0.175 है, ठीक है। और तुम्हारा एल बी बाई एल आया सपोज 2, तो उसका ये वाला क्या है, दैट इज सी वाई 0.04। तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा है, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसको ये वाला इक्वेशन में पुट कर दो, दिस वन, इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। अल्फा नहीं है, सी 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 एक्स और सी वाई जो भी आया ना, अच्छा उसमें से सी का वैल्यू तब हो जाएगा 0.175, क्लियर। यस अब तुम्हारा यस मैम ये हो गया थर्मल को, थर्मल निकल आया, टेम्परेचर स्ट्रेस, ठीक है। अब आते हैं कॉर्नर स्ट्रेस भी चाहिए रहता है, ठीक है, कॉर्नर स्ट्रेस के लिए भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो जो ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी वी नो, मॉडिफाइड वेस्टरगार्ड इक्वेशन बाय केली, ठीक है। ये है तुम्हारा लोड, कितना व्हील लोड है, एच थिकनेस कितना एज्यूम किया था, ए है तुम्हारा रेडियस ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया, एल है अगेन रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, क्लियर। पेज 20 में, आईआरसी का पेज 20 में ये सब क्या क्या है। তো ম্যাম এখানে যে मैम ওই कोड अलाउ है টেম্পারেচার বার এবার দেখো তোমাদের এতদিন তো অনলাইনই হয়ে যাচ্ছে, এবার ক্লাসটা অনলাইন হয়ে গেলে ক্লোড অ্যালাউ থাকে না থাকে সেটা তো আমরা বুঝতে পারবো না, তোমরা নিয়ে বসতে পারো, ঠিক আছে। ম্যাম বলছি যে এখানে ডিউ টু টেম্পারেচারের জন্য বার করলেন একবার, হুম, আর কর্নার স্ট্রেস বার করলেন, তো এখানে 18 পেজে দেওয়া আছে এর স্ট্রেসের জন্য বার করবো না ডিউ টু লোডের? এজের তো বার করলাম তো আমরা, এগুলো তো এজ থেকে, প্রথম তো ওটাই ইম্পর্টেন্ট, এগুলো এজ স্ট্রেস। না না, ডিউ টু লোডের জন্য ওই ওই প্রথম যেগুলো বার করলেন ওইগুলোই তো, হ্যাঁ ডিউ টু এটা লোড। তো ডিউ টু লোড হচ্ছে, এগুলো এজ স্ট্রেস ডিউ টু লোডের জন্য, ঠিক আছে। টেম্পারেচারের জন্য শুধু ওয়ার্পিং স্ট্রেস, কর্নারটাও তোমার লোডের জন্য, দেখো লোড আছে, ঠিক আছে। अब देखो दिस इज द स्टेप, डिजाइन स्टेप, इसके लिए इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, पढ़ सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट जाएंगे प्रॉब्लम में। तो तुम लोग का में देखो लास्ट में प्रॉब्लम है वो दिखाते हैं, उसी का एग्जांपल दे रहे हैं, तो इजी होगा। पेज 67 53, पेज 53 पे আছে, 53 पेज नंबर 53 में है, ठीक है। देखो क्या क्या दिया है, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट इज टू बी डिजाइन फॉर टू लेन टू वे ट्रैफिक, मतलब 25% लेना है, इन कर्नाटका स्टेट, मतलब यहाँ से तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस का पता चल जाएगा, ठीक है। कर्नाटका स्टेट दिया है मतलब क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस हमको वो जो अल्फा टी था, ई अल्फा टी सी, वहाँ से स्मॉल टी का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा। टोटल टू वे ट्रैफिक है तुम्हारा कितना, 300 कमर्शियल व्हीकल, ठीक है, पर डे एट द एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड, এটা বুঝো 300 कमर्शियल व्हीकल एट द एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड, सो दिस इज योर ए, मतलब कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, अब वहाँ पे ऑपरेशन के लिए स्टार्ट है, व्हीकल्स वहाँ से चलने के लिए मतलब खोल दिया है रास्ता, सो दैट तखनकार उस टाइम का तुम्हारा वॉल्यूम इज दिस वन विच इज ए। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट, ये जो बोला तुम्हारा कैपेसिटी कितना होगा, सेमिस्टर पेपर एक बोले थे हम, सेमिस्टर पेपर, और एक बोले थे तुम्हारा प्रिपरेशन, प्रिपरेशन की कंक्रीट का
स्ट्रेंथ कितना है 45 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इफेक्टिव मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन मतलब के इज 8 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। इलास्टिक मॉड्यूलस ई, ठीक है। पोइसन रेशियो म्यू, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा, टायर प्रेशर, ये देखो एच 0.8 MPa बोला था हमने, 0.8 MPa ले सकते हैं, वो दे दिया है। टायर प्रेशर स्मॉल पी, ठीक है। रेट ऑफ ट्रैफिक इंक्रीज, दैट मीन्स रेट ऑफ ट्रैफिक इंक्रीज मतलब क्या है, आर ग्रोथ रेट, ट्रैफिक ग्रोथ रेट इसको बोलते हैं। 7.5% उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके 0.075, क्लियर। यस मैम। स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट मतलब क्या है, दिस इज योर एल, मतलब अगर ये है दूसरा कॉन्ट्रैक्शन अगर ये है ऐसा अगर जाएगा तो स्पेसिंग बोला है, मतलब ये जॉइंट से लेकर ये जॉइंट का स्पेसिंग कितना है बोला है, इतना है, इज योर एल, ठीक है। बी इज 4.5 एंड विड्थ लेंथ इज हाउ मच, ये वाला विड्थ बोला है कितना, स्लैब का विड्थ, दैट इज योर बी, 3.5। बी तो बी, क्लियर। मैम रिएक्शन ऑफ बीएलसी से आप लोगों की के के था तो ठीक है। अब आते हैं प्रॉब्लम में, और एक प्रॉब्लम इसके अलावा और क्या चाहिए था हमको, ट्रैफिक लोड चाहिए था, राइट। ट्रैफिक लोड क्या है, ये वाला है, ऐसा दिया रहेगा तुमको, दिस इज द एक्सेल लोड सर्वे, एक्सेल लोड सर्वे डाटा। सिंगल एक्सेल के लिए है, टैंडम एक्सेल के लिए ये है, बोला है सिंगल एक्सेल का रेंज दे दिया 19 to 21, 17 to 19, ऑल दिस आर द रेंज। ऐसा वाला रेंज का व्हीकल्स, इतना एक्सेल लोड का रेंज का व्हीकल कितना बार आएगा, बोला है अगर 100 टोटल 100 है तो उसमें 0.6 नंबर ऑफ व्हीकल्स आर ऑफ दिस रेंज, मतलब 0.6%। इस रेंज में कितना आ रहा है 1.5%, ठीक है। अगर हम लोग टोटल इसका अगर 1000 है या 100 है इसका टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, सिंगल एक्सेल में अगर टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स आ रहा है 100 व्हीकल्स, तो उसमें सिर्फ 0.6 नंबर ऑफ व्हीकल्स आर ऑफ दिस रेंज, 1.5 नंबर ऑफ व्हीकल्स आर ऑफ दिस रेंज, मतलब 0.6 by 100 into 100 विल गिव यू 0.6, ठीक है। वैसे टैंडम का भी यही है, क्लियर। तो सिंगल एक्सेल और टैंडम का तुमको दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट तुम कन्वर्ट कर दो, इन सब का मीन ले लो विच इज गिवन बाय दिस। सिंगल का ये वाला मीन है, सिंगल यहाँ पे मीन, और टैंडम का मीन देखो कितना 19 21 का मीन है 20, 17 19 का है तुम्हारा 18, है ना, 15 17 का है तुम्हारा 16, ऐसे ऐसे करते जाओ, इसका भी निकालो, ठीक है। और ये एक रिपीटेशन था। हाँ एटार जन्नो फर्स्ट स्टेप व्हाट डिड आई से, वी शुड कैलकुलेट सी, सी मतलब यहाँ पे सी का मतलब दूसरा है, सी इक्वल्स टू था कितना 365, 665 ए हाँ ए मतलब ये वाला दिखा दे रहे तुमको, इंटू दिखा दे रहे वेट, 7 ये वाला इक्वेशन चाहिए, ये वाला 365 a इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर, ठीक है। a कितना है, a वॉज ए चलो 3000, तो 3000, ठीक है। a का वैल्यू 3000 था, r का वैल्यू 0.07.5%, 0.075, ठीक है। n और क्या चाहिए, a चाहिए n, अब n तुम लोग एड कर सकते हो, ठीक है। ये वाला तुम्हारे ऊपर है, तुम 30 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, राइट। दिस इज अपॉन यू, तो इस हिसाब से तुम्हारा कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। number of years, हाँ नंबर मतलब डिजाइन लाइफ, उसका पेमेंट का रिजिट पेमेंट का डिजाइन लाइफ, जैसे यहाँ पे तुम्हारा ले लिया है 320 इयर्स लिए से हाँ 20 ईयर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुमको एज्यूम दे একটা ফর্মুলা ছিল না हाँ हाँ फ्लेक्सिबल पेमेंट है, अच्छा बेटा ये वाला फॉर्मूला फ्लेक्सिबल पेमेंट में है, ऐसा विद बीडीएफ, हाँ 1 प्लस आर टू द पावर n बाई क्यों वाला, ठीक है बोल मैम बोले, क्लियर। तो देखो यहाँ पे सब पुट कर दो, ये 300 इंटू ए सॉरी 365 इंटू ए 1 प्लस आर मतलब कितना होगा 1 प्लस 0.075 मतलब 1.075 आर 20 ये करके ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या देना है, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मल्टीप्लाई कर देना। हम बोले थे अगर 100 व्हीकल्स उस रास्ते से जाएगा तो उसका 25% मतलब 25 व्हीकल्स विल गो थ्रू द एज, एंड एज में हम क्यों लेते हैं, क्योंकि एज में तुम्हारा ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होता है। सो डिजाइन ट्रैफिक इज व्हाट 25% ऑफ द टोटल रिपीटेशन ऑफ कमर्शियल व्हीकल, ठीक है।
which is given by 25% into 47, this one is giving out to be like this. ठीक है, अब ये है तुम्हारा क्या, थ्रू आउट द डिजाइन लाइफ इतना व्हीकल्स वो रास्ते के ऊपर से जा सकता है, ठीक है। उसमें से कितना परसेंट है तुम्हारा ये रेंज का, इधर दे दिया है। उसमें से कितना परसेंट है ये रेंज का, ये वाला दे दिया है। तो ये वाला वैल्यू कहाँ से आया बोल सकोगे फर्स्ट के लिए? उसका परसेंटेज निकालें, 0.6 मल्टीप्लाई करें। एग्जैक्टली, जो भी ये वैल्यू आएगा उसको 0.6/100 कर दो, क्योंकि ये वाला का है मीन है 20, तो 20 का कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज इज 0.6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.6/100 इंटू जो भी तुम्हारा ये वाला वैल्यू आएगा। क्लियर शायन? यस हाँ मैम प्लीज। जैसे तुम लोग खुद कैलकुलेट करके भी दे सकते हो। अब जैसे 22 वाला लो, यस मैम 11 और 13 इसका बीच में आएगा तुम्हारा मीन वैल्यू है 12 का परसेंटेज है कितना 22, दैट मीन्स 22/100 इंटू दिस मच विल गिव यू दिस वैल्यू। देखो ऐसे सवाल কোনটা নিতে বললেন? 11 আর 13 এরটা? हाँ 11 13 जो भी है उसका मीन वैल्यू है 12, तो 12 का कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज है 20%, so 22/100 इंटू दिस वैल्यू विल गिव यू दिस वन। यस यस यस। ऐसे से यस मैम सो लाइक दिस यू हैव टू कीप ऑन कैलकुलेटिंग, ठीक है। सबका वैल्यू ऐसे आ जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज योर व्हाट, दिस इज फॉर 20 ईयर्स, कि 20 ईयर्स में इतना व्हीकल आ सकता है, सो दैट्स व्हाई इट इज गिवन एज एक्सपेक्टेड रिपीटेशन, कि इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 ईयर्स में इस रेंज का। ম্যাম ম্যাম हाँ हाँ এই স্পন্দনের ক্লিয়ার না এক্সপেক্টেড রিপিটেশন। एक्सपेक्टेड रिपीटेशन था, ये क्या है, दिस वन इज फॉर योर टोटल डिजाइन पीरियड के लिए है ये वाला, राइट। अभी तो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम फ्यूचर के लिए सोच के कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक ग्रोथ रेट हम बिठा दिए, देखो 0.75 एज्यूम करके फॉर 20 ईयर्स एज्यूम करके, तो इतना 20 ईयर्स में इतना व्हीकल्स आ सकता है उस रास्ते के ऊपर से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब उसमें से ये वाला एक्सपेक्टेड कितना है, इस वाला रेंज का एक्सपेक्टेड है इतना, बाकी का कितना है इतना इतना इतना, जैसे परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड, इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? यस সৌরভ নাকি জিজ্ঞেস করেছিল সুমিত হাজরা? স্পন্দন अच्छा नाउ ये तो हो गया तुम्हारा। अब फर्स्ट ये स्टेप हम ये वाला टेबल बना लिए, फर्स्ट स्टेप हम क्या करें, वी आर डिजाइनिंग द पेवमेंट डिजाइन पेवमेंट थिकनेस। सो फर्स्ट वी हैव टू एज्यूम द थिकनेस, मतलब एक पैरामीटर हम एज्यूम कर देंगे, अब उस पैरामीटर को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, जो जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होता है कि नहीं, वी हैव टू चेक दैट। अगर क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, वो सेफ हो जा रहा है फॉर दिस थिकनेस, देन ओके, ठीक है। मतलब वो थिकनेस जो भी एज्यूम किए थे दैट इज योर डिजाइन थिकनेस ऑफ द पेवमेंट। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमको एज्यूम करना है। क्लियर? अब एज्यूम कर ये कर लेंगे, थिकनेस एज्यूम कर लिया, सबग्रेड मॉड्यूलस हमको पता है, ठीक है। और क्या पता है कि अब ये जो भी है, अच्छा ये वाला यहाँ ये वाला टेबल देखो, फर्स्ट टेबल हमको क्या करना है, ये लोड इधर ट्रांसफर कर दो एक एक करके, पहले सिंगल का फिर टैंडम का, ठीक है। सिंगल का फर्स्ट लोड कितना है 20 टन्स, 20 लिख दिया, ठीक है। उसमें से तुम्हारा क्या आएगा, एक LSF था, लोड सेफ्टी फैक्टर, यह था ना? यस मैम लोड सेफ्टी फैक्टर ये वाला अगर बोलेगा हाईवे है तो 1.2, अदर रास्ता है तो 1, और विलेज रोड या तुम्हारा रेसिडेंशियल रोड 1. रहेगा तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1.2 ले लिया है, हाईवे पकड़ के कर लिया, ठीक है। तो 20 इंटू 1.2 कर दो। हाँ ম্যাম ওটা কি নিজের উপরে ডিপেন্ড করবে, হাইওয়ে নিব না কমার্শিয়াল এখানে লিখে নিব দিয়েছি না মনে ভিলেজ? হয়, দেখো এখানে কি দেয়নি, ন্যাশনাল হাইওয়ে বলে দিচ্ছি। এই তো ন্যাশনাল হাইওয়ে हाईवे, কর্নাটক। नेशनल हाईवे बोले दिए तो, ठीक है। सो 1.2 हो जाएगा नेशनल हाईवे के लिए, तो मल्टीप्लाई करते इसका फर्स्ट ये कि तुमको ऐसा पूरा लिख देना नहीं है, रो वाइज कलम वाइज नहीं लिखना, हमको जाना है ऐसे, रो एक रो कंप्लीट करेंगे फिर नेक्स्ट रो में जाएंगे, ठीक है। ये याद रखना है कि पहले सब कॉलम में भर्ती कर दिया, रो में भर्ती कर दिया, फिर जाके ऐसा नहीं जाएंगे, हमको ऐसे जाना है, ये सब करेंगे स्टेप बाय स्टेप, फिर दूसरा स्टेप में जाएंगे ऐसा। क्लियर? तो फर्स्ट ये वाला रो स्टार्ट करेंगे, 20 ले लिया, 1.2 से मल्टीप्लाई 24 हो गया, ठीक है। स्ट्रेस
ये वाला क्या था तुम्हारा मॉड्यूलस ऑफ रप्चर, मतलब खुद का स्ट्रेंथ कितना था 45 केजी, ये हमको दिमाग में रखना है, ठीक है। और लेना क्या है कि स्ट्रेस, एज स्ट्रेस निकालना है फर्स्ट। एज स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस ड्यू टू एज लोडिंग, कहाँ से निकलेगा गिवन एज लोड का लिए कहाँ से, वो थर्मल का था तुम्हारा इक्वेशन, कॉर्नर लोड का भी इक्वेशन था, लेकिन एज के लिए कहाँ से लेना है हमको, चार्ट से लेना है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा लेंगे अब, देखो तुम्हारा करेक्टेड कितना था एक्सेल लोड 24 है, और ये वाला क्या है सिंगल एक्सेल, सो सिंगल एक्सेल 24, थिकनेस 32, थिकनेस 32 और के का वैल्यू है 8 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रखना है, क्या क्या चाहिए, 3 वैल्यू चाहिए था, लोड चाहिए था, एक्सेल लोड कितना है, थिकनेस कितना है और के वैल्यू कितना है, ठीक है। और ये सिंगल एक्सेल है ना, टैंडम एक्सेल। तो जाओ आप देखो ग्राफ कितना पेज, यहाँ से स्टार्ट है सिंगल एक्सेल सिंगल एक्सेल सिंगल एक्सेल, देखो ये वाला चार्ट, दिस वन, 24/8 ठीक है। 24 टन है सिंगल एक्सेल का, हम लोग, ठीक है, ये वाला करेंगे। अब 32 लिए थे हम, राइट, थिकनेस वाज आवर 32, के वैल्यू था हम लोग का 8, मतलब ये कौन सा है जिसका स्क्वायर है, मतलब ये सेकंड वाला, टॉप से सेकंड वाला ग्राफ। तो 32 को ऊपर 25 ऊपर 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 जाओ, यहाँ पे टच किया, ठीक है। तो टच करने के बाद कहाँ पे जा रहा है ये 32, यहाँ से 25 32 यहाँ पे था, यहाँ से जाके इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इज 25, ठीक है। तो 25 में चला जाएगा, देखो 25.19 ऐसा कुछ दिया है, अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का आया 25, ठीक है। থিকনেসটা 32 সেন্টিমিটারই নেব। কি আমি যত বেশি নেব তাহলে তো তত ভালো না, আচ্ছা ঠিক আছে। অ্যাজিউমের এবার ভাববে মনে রাখবে তোমাদের এটা হচ্ছে স্ল্যাবের থিকনেস, ঠিক আছে। तो नीलम, अब आता है स्ट्रेस रेशियो कॉलम। स्ट्रेस रेशियो क्या क्या बोला था, हम बोले थे सेमिस्टर का पेपर वर्सेस किसका, मतलब तुम्हारा स्ट्रेंथ जो कि है, যত কম হবে অত ভালো, हाँ বেশি লোড स्ट्रेस, নেবে। हाँ হ্যাঁ ম্যাম 32 কত গেল? दिखছি দাঁড়া, অ্যাজিউম এই যে এটা स्ट्रेस रेशियो फॉर्मूला ये है, देखो स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग मतलब ये वाला है, एज स्ट्रेस, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस मतलब एज में जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है दैट फ्लेक्सुरल टू लोडिंग बाय फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितना बोले थे हम लोग 45 kg पर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जाओ, तो यहाँ पे कर दो 45, मतलब 45 नीचे 0.5 रहेगा और ऊपर रहेगा तुम्हारा ये वाला, सो स्ट्रेस रेशियो विल बी 0.56 ঠিক আছে 25.19 बाय 45, क्लियर, 45 बाकी यस दिन ম্যাম क्लियर। আরে এই একবার 32টা বলুন। কত গেল ট্রায়াল থিকনেসটা? एज्यूम ট্রায়াল ঠিক না অ্যাজিউম we have আরে to, অ্যাসিউম 32ই কেন করলাম? তুমি 30ও করতে পারো, কিন্তু যত বেশি করবো অত ভালো। হ্যাঁ একেবারে হবে, এটা দেখো স্ট্রেস এটা পরে। রেশিওটা আরেকবার বলুন। स्ट्रेस रेशियो का मतलब क्या है, देखो स्ट्रेस रेशियो हम बोले थे स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग बाय फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। नाउ स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग वी गॉट फ्रॉम चार्ट, कितना आया फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ लोड, स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग इज 25.19, क्लियर, मतलब स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग बाय फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ व्हिच इज 45 kg, ठीक है। स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग इस कितना है 25.19, तो यहाँ पे ऊपर में आ गया 25.19 बाय Divided by 45 45 विल गिव यू 0.56, क्लियर। 45 কেজি পার সেমি স্কয়ার মডুলাস অফ রাস্টারটা তো हाँ ওই फ्लेक्सुरल ফ্লেক্সার স্ট্রেন হুম যেটা বলছেন। बेटा खुद का स्ट्रेंथ हो, ठीक है। तो अब देखो 0.56, एक आ रहा था 0.45 से कम हुआ तो क्या, 0.45 और 0.55 के बीच में हुआ तो क्या, 0.55 के ऊपर हुआ तो क्या, तो ये वाला आ रहा है तुम्हारा 0.56, तो थर्ड इक्वेशन, राइट। तो थर्ड इक्वेशन देखो, ये थर्ड इक्वेशन में जाएगा, एसआर का वैल्यू 0.45 है तो इन्फिनिटी आता है, दोनों के बीच में होता है ये वाला या ये वाला, ठीक है। हम लोग का देखो 0.56 आया तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, क्लियर। और यू कैन यूज द टेबल ऑल्सो जो कि उसी के नेक्स्ट पेज में है, ठीक है। सो 0.56 का देखो 9.41 इंटू 10 टू द पावर 4 आ रहा है, ठीक है।
তো वो वाला भी কত हम নম্বর পেজ আছে এটা? 15 এটা नंबर এই চারটা কত নম্বর? 15 15 पेज 15 पेज में जाओ, 14 में इक्वेशन है और 15 में टेबल है। 9.4 9.4 ठीक है, हुआ? यस मैम नीतीश है तो नीतीश, अच्छा ठीक है। देखो ये 9.941.1 इंटू 10^1, क्या गलत है क्या? 3 क्यों है? कितना था? 3 था और না ম্যাম 4 ছিল 9.41 ছিল না, এটা 94 আছে নাকি? यस मैम আচ্ছা একবার 94.1 আছে अच्छा 94 আছে তো, ঠিক আছে। ঠিক আছে। तो दिस इज अ फैक्टिक लाइफ, ठीक है, मतलब कि उसका लाइफ इतना इयर्स का है, सपोज এত বছর ও বাঁচতে পারবে, ঠিক আছে। अब दूसरा क्या है इसका एक्सपेक्टेड रिपीटेशन, उसके ऊपर कितना लोड आ सकता है, নোটটা ये বার है कि করেছিলাম हाँ ये है कि तुम्हारा कितना लोड ये ले सकता है, ठीक है, इसका लाइफ कितना है। और ये वाला क्या है, ये है कि कितना लोड उसके ऊपर आ सकता है, तो कितना आ सकता है फॉर 271127, दिस इज एक्सपेक्टेड रिपीटेशन, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब लिखना है कि फैक्टिक लाइफ कंज्यूम, मतलब तुम्हारा 100 इयर्स तक रहने का तुम्हारा एज है और तुम ऑलरेडी 80 इयर्स के हो चुके हो, ठीक है, तो तुम्हारा दिस लाइफ कंज्यूम्ड हो गया है, दैट इज हाउ मच 80/100, राइट। तो वैसे ये वाला भी पेवमेंट का फैक्टिक लाइफ है कि ये इतना लोड ले सकता है और इतना लोड उसके ऊपर आएगा, इन फ्यूचर आने का चांस है, तो उसका कितना लाइफ कंज्यूम्ड होगा, दिस बाय दिस विल गिव यू दिस वन, क्लियर। देखो दिस बाय दिस यस करो मैम 0.76 আসবে তো ম্যাম এটা 14 অবধি নিলাম কেন? 40 40। 14 অবধি নিলাম কেন? সিঙ্গেল অ্যাক্সেল লোড যেটা লোড ওই আমি তো 14 অবধি বলছি নিচে দেখো, তারপরে ট্যান্ডেম। আমি বলছি फर्स्ट वी हैव टू गो दिस वाइज, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम पहले ऐसे ऐसे जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना उसका लाइफ कंज्यूम हो जाएगा, अगर ऐसा वाला लोड अगर आएगा तो कितना लाइफ हो जाएगा उसका 0.76 लाइफ कंज्यूम हो सकता है, ठीक है, क्लियर। मतलब अगर उसके ऊपर 76 बार ये सा लोड आएगा तो वो ले सकता है, उसके ज्यादा अगर आ गया तो मतलब क्या हो जाएगा, वो फेल होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब तुम नेक्स्ट स्टेप में जाओ, सेम मेथड में करो, अब उसका फैटी लाइफ कंज्यूम कितना देखो कम हुआ है थोड़ा, क्यों, लोड तुम्हारा कम हो जा रहा है, ठीक है, करते 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 इतना आ रहा है। अब जब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, देखो 14 में अगर जाएंगे, 14 इंटू 1.2 विल गिव यू दिस वन, स्ट्रेस चार्ट से हमको ये वाला निकल आ जाएगा। स्ट्रेस रेशियो क्या था, दिस लोड डिवाइडेड बाय 45 विल गिव दिस वन, ठीक है। अब देखो ये क्या था, दिस वन इज लेस देन 0.45, दिस स्ट्रेस रेशियो इज लेस देन 0.45, मतलब कि infinite ये वो लोड, मतलब 14 किलो न्यूटन का लोड जितना बार भी आए उसको कुछ इफेक्ट नहीं होगा, मतलब यही है, सो इन्फिनिटी हो जाएगा। 14 লোডটা দিলে ইনফিনিটি লোড মানে ওর লাইফটা ইনফিনিটি হবে তাই তো? इन्फिनिटी बार और नीचे पावे, ठीक है। सो देखो इन्फिनाइट हो गया, नाउ दिस बाय इन्फिनिटी विल गिव यू 0, मतलब उसका कोई लाइफ कंज्यूम ही नहीं होगा, वो मतलब अमर हो जाएगा वैसा टाइप का, अगर ऐसा ही लोड आता रहा तो, ठीक है, उसका कोई लाइफ कंज्यूम ही नहीं होगा, वो अमर हो जाएगा। अब नेक्स्ट उससे थोड़ा कम है, देखो 12 में क्या है, 14 के बाद आ रहा है तुम्हारा 12, अगर हम 12 जाएंगे तो ये भी 0 ही आएगा, क्यों, 14 अगर वो इजीली ले पा रहा है विद इन्फिनिटी टाइम्स, तो ऑब्वियसली उससे कम तो और भी वो ले सकता है, तो अब उसके नीचे जितना भी बार करोगे एवरीथिंग विल कम आउट टू बी 000, ठीक है। सेफ जोन में रहेगा। वो सेफ जोन में है, वो 12 का लोड तुम इन्फिनिटी बार दो, 10 का भी इन्फिनिटी बार दो, कुछ इफेक्ट नहीं होगा, तो वो सेफ हो जाएगा। तो जहां पे 0 हो गया अब स्टॉप कर दो, अब नीचे मत जाओ, इसीलिए देखो सिर्फ 14 तक आया है, क्योंकि 14 तक ही आके वो 0 हो गया है, ठीक है। अब उसके नीचे जितना भी लोड दोगे सबका वैल्यू 0 ही आएगा। अब तुम टैंडम में चले जाओ, टैंडम का भी सेम वैसा ही प्रोसीजर है, इसमें जाके तुम्हारा 0 आ गया, मतलब टैंडम एक्सेल अगर इससे अगर कम हो जाएगा, मतलब 28 ऐसा आएगा, तो वो भी इन्फिनिटी बार ले सकता है, ठीक है। अब सबको सम कर दो, करने के बाद एक वैल्यू आएगा, दैट इज योर डैमेज, ठीक है, फैक्टिक लाइफ डैमेज बोलते हैं इसको, फैक्टिक लाइफ डैमेज, ঠিক আছে। বা इसको तुम बोल सकते हो क्यूमुलेटिव फैक्टिक डैमेज, क्योंकि ये क्यूमुलेट कर रहे हैं, हम ऐड कर दे रहे हैं, तो क्यूमुलेटिव फैक्टिक डैमेज हमारा है 1.17,
और उसका लाइफ कितना है, 100% ही है लाइफ, ज्यादा तो नहीं हो सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पे डैमेज देखो कितना हो रहा है, 100 से ज्यादा हो जा रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज नॉट एट ऑल Heavily सेफ, designed. सेफ नहीं है ये, लेकर करेंगे तो सेफ नहीं होगा। নাম কি বলেন বুঝলাম না हम्म বললেন বুঝলাম না देखो ये सबको हम अगर ऐड कर देंगे तो टोटल फैटिग लाइफ कंज्यूम मैक्सिमम कितना हो सकता था तुम्हारा, 100% ही वो उसका लाइफ हो सकता था, लेकिन यहाँ पे अगर करेंगे तो 1.17 मतलब 117% हो जा रहा है, ठीक है। अगर ये सब लोड आएगा तो उसका फैटिग लाइफ 100 उस मतलब जितना लाइफ था उससे भी पार हो जा रहा है, मतलब नेगेटिव में चला जाएगा, राइट। मतलब ये वाला वैल्यू अगर लेस देन 1 आया देन योर डिजाइन इज सेफ, ठीक है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आया मतलब ये 32 सेंटीमीटर जो भी हम थिकनेस देकर डिजाइन करेंगे इट वोंट बी सेफ, वो फेलियर हो जाएगा, ঠিক আছে। 1 এর থেকে কম থাকতে হবে। 1 থেকে কম থাকতে হবে, ম্যাম ইকুয়াল টু 1 যদি থাকে তখন আমরা 1 বা লেস দেন 1, ঠিক আছে। আমি তো চাইছি এগুলো ভ্যালু যত জিরো হোক তত ভালো, না টুয়ার্ডস জিরো হলে আরো ভালো। সো তখন ये वाला আস্তে পাশে ডিজাইনটা हाँ सो আবার thickness আবার দেখো সেম প্রসিডিওর দিয়ে এখানে সেম 33 করে নিয়েছে, তার চেয়ে ভালো তোমরা আগে একটু বেশি। এবার क्वेश्चन होते पारे कि व्हाई कांट वी गिव द मैक्सिमम मतलब थिकनेस, ज्यादा थिकनेस देकर हम क्यों नहीं करेंगे, तो उसमें अब वेस्ट हो जाएगा, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, लेकिन थिकनेस ज्यादा दोगे तो हमको इकोनॉमिक वे में करना है, इसलिए ये ट्रायल एंड एरर कर रहा है, ठीक है। तो देखो उसमें वो ज्यादा नहीं बढ़ाया, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया 33, और आके चेक कर रहा है कि अब सब वही प्रोसेस है, वही प्रोसेस करके यहाँ तक अगर जीरो हो जाएगा स्टॉप कर दो, फिर इसमें चला जाओ। इसमें 2 बार किया है, ये करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली इतना में ही हो जाएगा, एक बार जीरो आया स्टॉप कर दो, क्योंकि ये ऐड ही करना है हमको। तो करने के बाद 0.47 आ रहा है, देखो 1 से कम है, तो ये इजीली टैकल कर सकता है उतना लोड 33 से। सो दिस इज सेफ, क्लियर। তারপর চেক অফ টেম্পারেচার। उसके बाद जैसे तुम लोग से चेक करते हो, अब ये तो सिर्फ तुम्हारा है ओनली फॉर एज स्ट्रेस, एज लोडिंग के लिए सिर्फ चेक कर रहे हैं। अब थर्मल चेक हो सकता है, टेम्परेचर स्ट्रेस के लिए चेक हो सकता है, कॉर्नर स्ट्रेस के लिए भी चेक हो सकता है, तो देखना है। थर्मल स्ट्रेस का वही फॉर्मूला में डाल दो, एल का वैल्यू दिया था कितना, स्पेसिंग जो भी है दैट इज योर 450 मतलब 4.5 मीटर, 450 बी इज 3.5 मीटर, 350 एल का वैल्यू कैलकुलेट होगा यहाँ से, देखो হ্যাঁ ये तो ठीक है। रिलेटिव स्टीफनेस रिलेटिव स्टूडेंट एज का वैल्यू 33 ले लिया, अब यहाँ पे एच क्यूब जो था उसमें 33 पुट करके बिठा दो, ठीक है। तो एल का वैल्यू आएगा ये वाला, अब निकालो एल बाई एल या बी बाई एल जो भी वैल्यू आएगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सी निकालो, जो सी का मैक्सिमम वैल्यू उसको यहाँ पे पुट कर दो। नाउ आफ्टर पुटिंग दैट वी आर गेटिंग, देखो फर्स्ट कर्नाटका रीजन, ये टी चाहिए था हमको, अल्फा हमको पता है, ई पता है, सी निकल आया चार्ट से, टी है तुम्हारा 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ये थर्मल उसके लिए रीजन के लिए है, कर्नाटका रीजन के लिए, ठीक है। तो पुट कर दो, करने के बाद तुम्हारा इतना लोड आएगा, कितना आ रहा है 17.3, ठीक है 17. যদি এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল বলে দেন ইয়ে তো না কর্ণাটকা ছিল, আমি এক্সাম্পল ওয়েস্ট বেঙ্গল বলেছিলাম, ঠিক আছে। ম্যাথে ম্যাথে একটা জায়গায় ওয়েস্ট বেঙ্গল ছিল দেখছিলাম ওয়েস্ট বেঙ্গল যদি হয় তখন তোমাকে একটা ও দেখতে হবে, এখানে চার্টে কোথায় একটা আছে দেখছি দাঁড়াও, ওই otherwise they will মেথডে provide, কোশ্চেন একটা they will provide you one chart টেম্পারেচার থিকনেস এর সাথে টেম্পারেচার ডিফারেন্স কত হবে ফর সার্টেন রিজন, ঠিক আছে। এখানে থাকার কথা, দাঁড়াও টেম্পারেচার স্ট্রেস তো কোথায় আছে, সব ভ্যালু আছে, দেখো কি ভ্যালু এগুলো থাকবে, ঠিক আছে। सी हियर पेज सॉरी 8, पेज 8 पे जाओ, वहां पे मिल जाएगा तुमको। तो हम लोग का कहाँ है, कर्नाटका কর্ণাটক কর্ণাটকে এখানে দিয়েছে 21 30 কাটকির জন্য সেন্টিমিটার है 22 21,
হুম ঠিক আছে? তো ওই রেঞ্জে নিয়ে নিয়েছে এরা, 30, হ্যাঁ ঠিক, ঠিক আছে? মানে 30 উপরে 21 হুম, নেবে নাকি, হ্যাঁ, তাই তো ভাবছি। क्लियर? ওকে ম্যাম। अच्छा, पेज वो लिख सकते हो, पेज 8 में है। अब आता है तुम्हारा क्रिटिकल कॉम्बिनेशन। एक आया एज स्ट्रेस और एक आया वार्पिंग स्ट्रेस। तो कॉम्बिनेशन क्या था? अगर फ्रिक्शनल स्ट्रेस को हम हटा देंगे, फ्रिक्शनल 3 स्ट्रेस रहता है, एज लोडिंग के लिए रहता है, थर्मल के लिए 2 टाइप का होगा, एक वार्पिंग और एक होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का हटा दिया, अभी सिर्फ 2 स्ट्रेस रह गया, तो दोनों को ऐड कर दो, ठीक है? হুম यहाँ पे देखो, ये ऐड मैक्सिमम कितना लोड था इसके लिए? मैक्सिमम था, देखो 24 था, एज स्ट्रेस मैक्सिमम कितना था? 24। सो ड्यू टू 24 लोडिंग एट एज मैक्सिमम इज 24 सब में से, ठीक है? फिर उसके बाद तुम्हारा आया 17.3, ये वाला ऐड कर दो, इतना आ रहा है विच इज लेस देन 45, 20 ठीक है? কি করতে গেলাম? कैलकुलेट एज ए कैलकुलेट আচ্ছা एज আচ্ছা, warping stress, ঠিক আছে? which is less than 45, so it is satisfying again, 45 টা হচ্ছে your strength, ঠিক আছে? मैम वो समझ में नहीं आ रहा। कौन सा? ये वर्किंग स्ट्रेस एंड हाईएस्ट एक्सल, हाँ वर्किंग स्ट्रेस एंड हाईएस्ट एक्सल लोड स्ट्रेस। ये वाला हमको ऐड कर अभी हम देना है, उधर गए। क्योंकि देखो इसका मतलब है कि वार्पिंग स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर जो आ रहा है स्ट्रेस, और लोडिंग के सॉरी ये ड्यू टू टेम्परेचर ड्यू टू लोडिंग, तो टोटल स्ट्रेस कितना होगा? तो टोटल स्ट्रेस आ रहा है तुम्हारा 41.4, और खुद का स्ट्रेंथ वो कितना ले सकता था, कैपेसिटी कितना था उसका? 45। देखो ये आ रहा है एक्सटर्नली, और ये खुद का वो रेजिस्ट करने का क्षमता है, ये 45 मैक्सिमम इतना वो ले सकता है, तो सेफ है वो। अगर 33 अगर डिजाइन करेंगे तो सेफ है, ठीक है? देखो 33 के ऊपर कैसे डिपेंडेंट हो रहा है, देखो ये वाला वार्पिंग स्ट्रेस डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? सी वैल्यू पर। सी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एल के ऊपर, और स्मॉल एल देखो यहाँ पे एच के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट। तो ये पर्टिकुलर एच के लिए ये वाला स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है? जब हम लोग एज का भी ধরুন बोलो, এখানে ওই টোটাল টেম্পারেচার ওয়ার্কিং স্ট্রেস এন্ড হাইয়েস্ট অ্যাক্সেল লোড স্ট্রেস যেটা এল ভ্যালুটা 41.4, এটা যদি 45 এর বেশি হয় তখন কি হবে? তখন মানে আবার টেক্সটাইল আমাদেরকে স্ট্যান্ডার্ড একটু বেশি আছে, চেঞ্জ করতে হবে আবার। আবার থিকনেস চেঞ্জ হ্যাঁ, করতে এটা হবে। চেক ঠিকই চেক চেঞ্জ করতে হবে তো। হ্যাঁ, এটা চেক, একটা ধরনের চেক এটা, ঠিক আছে? আবার চেঞ্জ বাড়াতে হবে সেম ভাবে। ঠিকঠাক করতে করতে শেষ হয়ে যাবে। সেম ভাবে मैम কর্নার স্ট্রেসটা বার করবে, চেক করো কর্নার স্ট্রেসটা আমাদের এসেছে কত? 15.52। मैम अभी हम थोड़ा मैम बोलो। अभी हम थोड़ा उधर गए थे तो वार्पिंग स्ट्रेस 24 कैसा है वो समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, वार्पिंग स्ट्रेस है 17.3, और तुम्हारा यहाँ पे देखो कितना लोड था? मैक्सिमम आया 24 था, ठीक है? स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस जिसकी, केजी पर हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसकी वजह और से हाईएस्ट एक्सल लोड ओ देखो हाईएस्ट। हाईएस्ट एक्सल लोड ये भी हो सकता है, राइट? टैंडम एक्सल तुम लोग ये भी बोल सकते हो, ठीक है? लेकिन ये वाला है तुम्हारा किसके लिए है? सिर्फ एक एक्सेल में। टैंडम में कितना होता है? 2 एक्सेल होता है, तो 2 एक्सेल मिला के ये है, ठीक है? कंफ्यूज मत हो हाँ जाना। तो इंडिविजुअल एक्सेल में इसका हाफ हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम कितना आ रहा है? ये वाला, ठीक है? तो दोनों लोड की वजह से ये है तुम्हारा स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग, एज लोडिंग। दिस इज स्ट्रेस ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस, मतलब टेम्परेचर। दोनों को ऐड कर दो, इतना लोड आ रहा है विच इज अगेन ग्रेटर लेसर देन योर स्ट्रेंथ विच इज 45, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ से कम है, ठीक है? कॉर्नर स्ट्रेस का भी देखो यहाँ पे थोड़ा ये वाला जो भी है पी कैलकुलेट करने का, मतलब स्मॉल ए कैलकुलेट करने का ये वाला बड़ा एक फॉर्मूला दिया है। हम बोलेंगे तुमको ये वाला नहीं करके नॉर्मल कौन सा है, लोड पर यूनिट एरिया करके वहां से ए का वैल्यू निकालना। ए इज रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर, सॉरी कॉन्टैक्ट एरिया। मतलब अगर ये व्हील है, सॉरी मतलब अगर दिस इज योर व्हील, इसका एरिया हम बोले कॉन्टैक्ट एरिया, जिस कॉन्टैक्ट पेवमेंट में लोड ट्रांसफर कर रहा है, दिस विल बी सर्कुलर इन नेचर, दिस रेडियस इज योर स्मॉल ए। अगर तुम्हारा लोड है, तुम्हारा सपोज पी है, ठीक है? कैपिटल पी अगर लोड है, ठीक है? अगर इसका एरिया हमको पता है कितना, पाई ए स्क्वायर। अगर हमको इसको स्ट्रेस अगर पता रहेगा, स्मॉल क्यू कॉन्टैक्ट प्रेशर या कॉन्टैक्ट स्ट्रेस अगर पता रहेगा, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया, राइट? क्यू इज वन बाय पी
बाई कैपिटल P पाई a स्क्वायर, राइट। P हमको पता रहेगा तुम्हारा ये Q का भी, Q इज 8 MPa दिया है, 0.8 kg पर मीटर इसको दिया है, ठीक है, 0.8 MPa Q का वैल्यू भी, तो उस हिसाब से A का वैल्यू निकल आए। क्लियर? ठीक है, तो वहां से तुम्हारा स्ट्रेस उसमें पुट कर दो, स्ट्रेस इक्वेशन में पुट कर दो, करने के बाद आएगा तुम्हारा कितना आ रहा है 15.52 which is less than again 45, so the pavement thickness is okay। 33 जो भी एज्यूम किए थे वो ओके है। मैम जो टायर प्रेशर का फॉर्मूला लिखा है वो क्या दूसरा है? আমি একটু পেছন থেকে বলবেন, আমার কারেন্ট চলে গেছিল নিশ্চয়ই। ये जो है देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये वाला फॉर्मूला में देखो, इस P, ठीक है, A चाहिए, L चाहिए, H हमको पता है, P हमको पता है, L हमको पता है, ठीक है। देखो L कितना है, L इज 1.035 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यहाँ पे अननोन सिर्फ है तुम्हारा क्या, A है, ठीक है। A के लिए यस तो A के लिए हमको चाहिए क्या, हम बोले थे स्मॉल p मतलब Q इज इक्वल्स टू क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू लोड पर यूनिट एरिया, राइट। दैट इज हम कांटेक्ट एरिया बोले थे, इट विल बी रेडियल सॉरी सर्कुलर इन नेचर, सो पाई a स्क्वायर, ठीक है। इफ यू नो दिस वन, इफ यू नो दिस वन, दिस इज योर 0.8 कितना दिया देखो 0.8 MPa या हाँ 0.8 MPa दिया है, दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू निकल आएगा, a का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे बिठा दो। তলায় চলে যে ওই ফর্মুলা লিখেছে a = হ্যাঁ ওটা 0.85। অনেক বড়, আমি নর্মালি বার করতে পারি, ঠিক আছে। কোড এলাও করলে মনে রাখবে, রাখার দরকার নেই, এটা দিয়ে করে নেবে। ठीक है मैम एक हाँ फॉर्मूला से निकलेगा? हाँ ये वाला फॉर्मूला से भी निकल सकता है या डायरेक्ट उस वाले में भी निकालो, ठीक है। निकाल के तुम्हारा यहाँ पे पुट कर देना है उस इक्वेशन में, ये ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करके ये वाला आ जाएगा, कैलकुलेट करो, यहाँ से तुम्हारा कॉर्नर स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला इट शुड बी ग्रेटर देन योर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ 45, सो सेफ, अगर नहीं हुआ तो अनसेफ है, फिर से थिकनेस को बढ़ा देना है। मैम क्लियर? डायरेक्ट एक कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट ए, यस डायरेक्ट है तो अभी तो बोले हम लोड डायरेक्ट, ये वाला फॉर्मूला एक है, ये वाला पूरा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा या तुम लोग को देखना पड़ेगा कोड से, ठीक है। यस नहीं तो जस्ट लोड पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू स्ट्रेस है, स्ट्रेस पता है तो एरिया निकाल लो। लोड ওই লোড এখানে কত দেবো, এই যে ওই এই যে পয়েন্ট এখানে ওইটা দিয়েছি তো। দেখো, হ্যাঁ এটা অ্যাক্সেল লোড, আমি পিটা বলছি, এটা হুইল লোড আমি কনসিডার করছি, मतलब তোমাদের স্ট্যান্ডার্ড যেটা আছে, ঠিক আছে। ক্যান্ডেল একটা লোড তো হুম 8 পয়েন্ট, যেটা 1 হুম 8.16 যেটা। হুম। ठीक है सो दिस इज द प्रोसीड्योर। तो तुम लोग ये वाला एग्जांपल करो, ठीक है, सॉल्व करो, समझ में नहीं आया तो पूछना। तो आज का टॉपिक इतना ही, हम ये पीडीएफ दे देंगे और कोड अपने पास रख के प्रैक्टिस करना है। और कोई डाउट है? नो मैम। হ্যাঁ একবার শেয়ার ভ্যালুটা একটু বলবেন। কি ভালো সি ওই যে যেটা। নিয়েছো তো তুমি কয়েকজন? হ্যাঁ আমি স্ক্রিনশট একটা। मैम কয়েকজন कोड क्या गूगल में लगा? क्या কি বললে তুমি? कोड गूगल में मिलेगा? সায়ন কি বলছো? হ্যাঁ ওই শেয়ার ভ্যালুটা সি, কি এটা গ্রাফ বার করছেন, গ্রাফ থেকে। গ্রাফ থেকে কি ফর্মুলাটা ভুলে গেলাম আমি। ওই সি ল্যামডা টি যেটা বার করছিলাম যেখানে। গ্রাফ না এই ফর্মুলা, দিস ওয়ান। ওই দাঁড়ান, ফর্মুলাটা হচ্ছে ওই আচ্ছা আচ্ছা, ওই ওয়ার্কিং স্টেজের ফর্মুলা যেটা আপনি বার করছেন, ওই ওয়ার্কিং স্টেজে ওই এল বাই বি করে ওটা একবার দেখান না, মানে ম্যাথে কি করে করলে একবার দেখান গ্রাফ এই থেকে। যে দেখো এল বাই তোমাদের কত এসেছে বলো? एल was এল 4.5 मीटर 450, मतलब 450 सेंटीमीटर, ठीक है।
स्मॉल एल कितना है? स्मॉल एल 103.5। 3.5। তো এল বাই এল কত আসবে? এল বাই এল কত আসবে? एल बाई 4.4। एल बाई एल कमिंग आउट टू बी 4.4। ठीक है, अब यहाँ पे जाओ, 4.4 तो नहीं है, 4 और 5 के बीच में, तो इंटरपोलेट करना है, तो यहाँ से 4.4। ठीक है, इसका ही इंटरपोलेट करके वो निकालो, सी का वैल्यू। वैसे बी बाई एल का जो भी वैल्यू आएगा, अगर वो बीच में है तो फिर से इंटरपोलेट करके निकालो। सो दो वैल्यू आएगा सी का, एक कॉरेस्पॉन्डिंग टू एल बाई एल, बी बाई एल, टेक द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। ठीक है, एनी डाउट? ओ मैम। क्या है मैम चश्मा हार्ड नहीं है? कॉपी रखना होगा क्या? हार्ड कॉपी मतलब किस चीज का हार्ड कॉपी? IRC 58 का। हाँ, IRC58 अलाउ है तुम लोग का। ম্যাম আপনি এটা গ্রুপে সেন্ড করে দেবেন ওই হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখবো ঠিক আছে, ক্লাস। দেখতে তো হবে, আমি তো সবাইকে করিনি অ্যাড। ঠিক আছে, যদি মোবাইলে করে থাকো একটু স্ক্রিনশট নাও, পাঠাও ওটা আমাকে ভালো করে।